हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द बजट 2024-25. दिस इज सिक्स्थ बजट ऑफ निर्मला सीतारमन एंड वी नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज एन इंटरिम बजट बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन ईयर. जब नई सरकार बनेगी वो अपना फिर फुल फ्लेश्ड बजट देगी. सो लेट अस बिगिन. Nirmala Sitharaman, in her speech, she discussed the entire budget into three parts: social justice, strategies for Amrit Kal, and tax proposals. तो हम बजट को इसी तरह से ही डिस्कस करेंगे ताकि हम सबको चीज़ों को समझने में आसानी रहे. Well, before I start, let us have a quick look of important Indian parameters, growth parameters. If we see GDP of the country, India GDP is $3.732 trillion in terms of nominal GDP, and it is 13.119 trillion in terms of purchasing power parity, right? Purchasing power parity में जो कंपैरिजन करना है वो इजी हो जाता है और स्टीक हो जाता है बिकॉज इसमें हम डिफरेंट कंट्रीज की जो इन्फ्लेशन है उसको हम एडजस्ट कर देते हैं. So PPP is considered as the most important and most significant parameter to compare the countries. So in terms of PPP, it is $13.119 trillion. GDP rank में nominal GDP में India is the fifth largest economy of the world, whereas in terms of purchasing power parity, India is third largest economy in the world. In terms of nominal GDP, USA is number one country. In terms of purchasing power parity, China is number one country, followed by USA and India. GDP growth की अगर हम बात करें, financial year 2022-23, it recorded 7.2% GDP growth rate of India. Financial year 2023-24, it recorded 7% growth rate of India, and in the quarter 2 of 2023-24, growth rate was 7.6. So we can make it out that on the average Indian growth rate, Indian GDP growth rate is either 7% or above. In fact, India is the fastest growing major economy of the world. If we look at GDP per capita, prati vyakti aay, on the average how much an Indian earns, it is $2,612 in terms of nominal per capita GDP, and it is above $9,000 in terms of purchasing power parity. So these are important parameters ताकि हमें पता चल जाए where do we stand, हमारी इंडियन इकोनॉमी की अभी दशा क्या चल रही है. Well, this is budget table which I downloaded from Ministry of Finance website. इंडिया का जो टोटल बजट है वो 47.6 लाख करोड़ का है. Actually, budget is the proposed, it is a statement of proposed government receipts and expenditures. Government पैसा कहाँ खर्च करेगी, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, where rupee will go, from where rupee will come, right? So गवर्नमेंट का जो टोटल receipts हैं, they are 47.6 लाख करोड़. गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, it is also 47.6 लाख करोड़, right? सो जो रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट की उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. सिमिलरली जो एक्सपेंडिचर है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. Now this pie chart explains beautifully that from where rupee comes. रूपी सरकार के पास पैसा आता कहां से है. गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स है फंडिंग का, इट इज बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज. सो 28% ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स दे कम फ्रॉम बोरोइंग्स. Number two is GST and other taxes. Sorry, number two is income tax. Income tax का जो share है, it is 19%. It is a second major source of government receipts, followed by GST and other taxes. GST and other taxes का जो share है, it is 18%. Number four पे है corporation tax. Corporation tax is the tax which is levied on the profits of domestic and foreign companies, right? एंड नंबर 5 इज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, फीस, फाइन्स एंड अदर रिसिप्ट्स, प्रॉफिट्स ऑफ PSUs, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, इट इज 7%. एंड नंबर 6 इज यूनियन एक्साइज ड्यूटीज. एक्साइज ड्यूटी इज levied on the manufacturing and production activities, right? और सो ये मेजर आइटम्स. कस्टम का शेयर 4% है.
नंबर 7. सो यू कैन सी जो 3-4 मेजर शेयर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इट इज बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, देन income tax, then GST and other taxes, and then corporation tax. So this is rupee comes from, right? Rupee goes to गवर्नमेंट का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? Now it is important, गवर्नमेंट जो है सबसे ज्यादा कहाँ स्पेंड कर रही है? नंबर 1 इज स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज. फाइनेंस कमीशन की डायरेक्शंस हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी टैक्सेस अर्न करती है उसका एक पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाएगा. तो स्टेट शेयर टोटल एक्सपेंडिचर का इट इज 20%. 20% ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट गोज टू स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर इट गोज टू स्टेट्स. और इंटरेस्ट पेमेंट का शेयर भी 20% है. सो वी कैन से दैट बोथ स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स दे आर रैंक्ड नंबर 1. इंटरेस्ट पेमेंट्स मैंने आप पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, जो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स हैं दे आर 28% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स. तो इतनी ज़्यादा जब गवर्नमेंट बोरो करेगी तो गवर्नमेंट उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करेगी. सो इंटरेस्ट पेमेंट्स दे आर 20% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. फॉलोड बाय सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, द शेयर इज नंबर 3. फॉलोड बाय अदर एक्सपेंडिचर, स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट हेड्स में स्पेंड करती है, तो ये सारे के सारे वहां आ गए. सो दीज आर द मेजर. डिफेंस के ऊपर 8% है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के ऊपर भी 8% है. सो यू कैन सी, लेकिन मेजर 2-3 आपको याद रखने हैं. इट इज स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, अदर एक्सपेंडिचर्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स. ये मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेंडिंग्स है, राइट. नो फिस्कल, ये जो डिफरेंट डेफिसिट्स हैं इनका ट्रेंड क्या रहा? वी कैन सी, ये जो आपको यहाँ पे ग्राफ बता रहा है कि 2020-21 में फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ERD, effective revenue deficit and primary deficit all were high. Because it was COVID year, it was a time when government earnings were very less and government spendings were very high. गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है इट इज 5.1%. प्रपोज फिस्कल डेफिसिट फॉर द बजट ईयर 2024-25. इट इज कमिंग डाउन. हम देखें ओवर द ईयर इट इज कमिंग डाउन. फिस्कल डेफिसिट बेसिकली इट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एडजस्टेड विद द बोरोइंग्स. तो फिस्कल डेफिसिट इस बार का प्रपोज्ड 5.1% है. रेवेन्यू डेफिसिट इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, इट इज प्रपोज्ड टू बी 2%. Then primary deficit, which is fiscal deficit minus interest payments. Primary deficit की definition है, it is fiscal deficit minus interest payments. It is proposed to come down to 1.5%. And effective revenue deficit, it is 0.8%. So you can see it is coming down, or this is a good trend. Well, what is the vision of budget 2024-25? 2024-25 का जो विजन है, ब्रॉडर विजन है, इट इज टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री बाय द ईयर 2047, अ विकसित भारत बाय 2047. उसके लिए देयर इज ए स्ट्रैटेजी, सबका साथ सबका विकास, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल. देन सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास. नाउ दिस इज एडेड, सबका विश्वास, which means diversity, right? And then backed by सबका प्रयास. So it is कि सारी की सारी जो 140 करोड़ लोग हैं उन सबका एक एफर्ट बीच में जुड़ जाए. और अगर हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, उन सबको साथ में ले आए, then we can achieve a developed country by the year 2047, right? मैंने आपको कहा था कि जो निर्मला सीतारमण का बजट है वो 3 पार्ट में उसने अपना बजट दिया. सोशल जस्टिस की बात की, देन स्ट्रैटेजीज फॉर अमृतकाल एंड देन टैक्सेस. तो हम सोशल जस्टिस से बात शुरू करने जा रहे हैं. सो शी सेज दैट इन सोशल जस्टिस देयर आर 4 पिलर्स ऑफ सोशल जस्टिस. शी टॉक्स अबाउट 4 कास्ट्स. व्हाट आर द 4 मेजर कास्ट वेयर बजट लेज इट्स फोकस. एक नया एक विजन, नया एक दृष्टिकोण. 4 मेजर कास्ट्स क्या है इंडिया की? सो इट इज गरीब, पुअर, यू कैन सी 4 major castes in India. They are poor, they are women, महिलाएं, and then there is युवा, that is youth, and then there is
farmer, that is अन्नदाता. So गरीब महिलाएं, युवा और अन्नदाता, poor women, youth and farmer. So ये 4 मेजर एरियाज हैं, मेजर कास्ट हैं जहां पे गवर्नमेंट का फोकस है इस बार के बजट में. Now what was done and is proposed for poor. सबसे पहले हम बात करते हैं गरीब की. जो 4 कास्ट की बात की है निर्मला सीतारमण ने, तो सबसे पहली कास्ट की बात करते हैं, दैट इज पुअर. Government assisted 25 crore people out of multi-dimensional poverty in last 10 years. आप सबको multi-dimensional poverty index पता होगा. It was introduced in the year 2010. 2010 Human Development Report में MPI Multi-Dimensional Poverty Index UNDP ने इंट्रोड्यूस किया था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, बिकॉज जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इट इज पब्लिश बाय यूएनडीपी. इसके 3 मेजर पैरामीटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड वेल्थ, जिनके आगे फर्दर 10 सब पैरामीटर्स हैं. उसके बेसिस पे, बिकॉज मल्टी डिमेंशनल इंडिया में जो पॉवर्टी की मेजरमेंट थी, बेसिकली इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज, कैलोरी इनटेक, राइट. 2400 किलो कैलोरीज इन रूरल एरियाज, 2100 किलो कैलोरीज इन अर्बन एरिया. ये हमने पॉवर्टी लाइन डिफाइन कर दी. लेकिन यूएनडीपी कहता है कि जो पॉवर्टी इट इज मल्टी डायमेंशनल, इट इज नॉट अबाउट फूड, इट इज अबाउट other things as well. Lack of access to education, it is also poverty. Lack of access to good health, it is good health facilities, it is also poverty. So इस तरह से multi dimensional poverty index बनाया गया. And interestingly इंडिया का जो MPI में रैंक है, it is multi dimensional poverty के हिसाब से इंडिया की जो poverty है 2005-2006 में 55.3% Indians they were multi dimensionally poor. Now in 2022-23 only 11.3% Indians they are multi-dimensionally poor. तो बजट ये कह रहा है कि last 10 years में 24 crore people they have come out of multi-dimensional poverty. बजट कहता है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. वेल अगर हम बात करें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की, डीबीटी ऑफ ₹34 लाख करोड़ यूजिंग पीएम जनधन अकाउंट. दे हैव बीन इतना पैसा लोगों के पास गया है. पीएम स्वनिधि प्रोवाइडेड क्रेडिट सिस्टम टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स. तो आपको स्कीम्स कुछ याद रखनी है कि ये जो पीएम स्वनिधि है ये बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स की स्कीम है, जिसमें 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स उनको क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है, राइट. एंड 2.3 लाख हैव रिसीव्ड क्रेडिट फॉर द थर्ड टाइम. Then PM Janman Yojana to aid the development of particularly vulnerable tribal groups. So particularly vulnerable tribal groups के लिए scheme है, it is PM Janman Yojana. And then PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craft people engaged in 18 trades. So Vishwakarma basically artisans के लिए है, right? So this is about the poor. मैंने 4 कास्ट की बात की. So ये पहली कास्ट poor. Second is women, नारी शक्ति. नारी शक्ति की बात करें, देन 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स गिवन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया में दिए गए हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए. फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन गोन अप बाय 28%. दिस इज आल्सो गुड साइन. जो हायर एजुकेशन में, बिकॉज स्कूल ड्रॉप आउट एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न था विमेन के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, कि स्कूल ड्रॉप आउट काफ़ी था. लेकिन अगर अब हायर एजुकेशन में बच्चे जा रहे हैं, इट मीन्स स्कूल इनरोलमेंट भी उनकी अच्छी होती जा रही है. इन स्टेम कोर्सेज जो बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये वाले जो कोर्सेज हैं, इसमें गर्ल्स एंड वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 43% ऑफ इनरोलमेंट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. अगेन ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है इंडिया की स्टेम कोर्सेज में इनरोलमेंट. 70% houses under PM Awas Yojana given to women from rural areas. So this is another achievement shown by the government. And 1 crore women assisted by 83 lakh self-help groups to become Lakhpati Didis. ये लखपति दीदीज का कॉन्सेप्ट है जो माइक्रो फाइनेंस के थ्रू जो एक चेंज रूरल इंडिया में आ रहा है, स्पेशली वुमेन में. एंड वन मोर थिंग, the budget 2024-25 it talks about
increase in female labor force participation rate. Dear friend, this is very very important. जो labor force participation rate basically it is active population जो है जिसको whether available for work plus which is working, so it is active population जिसको हम labor force participation कहते हैं. और जो female labor force participation it was 23.3% in the year 2017-18 और पिछले सिर्फ 5 सालों में 5 years में it has gone up to 37%. So this is a very very good scenario. This is very very good change, especially as far as women are concerned. The third caste it is youth, that is Yuva. So what was done and is proposed for youth? 1.4 crore youth trained under Skill India mission. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि 1.4 crore youth trained under Skill India mission, fostering entrepreneurial aspirations of youth. 43 crore loans sanctioned under PM Mudra Yojana. This is another achievement shown by the government. PM School for Rising India, जिसको हम PM श्री कहते हैं, they are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. कुछ selected schools हैं जिनको हम PM श्री schools कहते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन schools की एक ओवरऑल जो लुक है, उनका जो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसको चेंज करने जा रही है. उसमें फंडिंग बढ़ा रही है और उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ प्रोवाइड करने जा रही है, जिसको हम PM श्री स्कीम कह रहे हैं. तो 2023-24 में 4000 करोड़ का बजट था और इस साल के बजट में PM श्री के अंदर 6050 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है. सो इट शोज दैट government is serious about increasing the quality of education in the country. The budget also highlights that 2014 में there was 16 IITs, now there are 23 IITs. 14 में there were 7 AIIMS, now there are 22 All India Institute of Medical Sciences. Universities 2014 में 723 थी, अब 1113 है. So number has gone up, right? So this is for Yuva, for youth of the country. Well, what was done is proposed for the farmers. Annadata. PM Kisan Samman Yojana provides financial assistance to 11.8 crore farmers. PM Kisan Samman Yojana, we know this thing, जो सरकार farmers में के accounts में पैसा डालती है. Then under PM Fasal Bima Yojana, crop insurance is given to 4 crore farmers. So 4 crore farmers, they are beneficiary of this scheme, PM Fasal Bima Yojana. And then Electronic National Agriculture Market, ENAM, integrated 1361 mandis, providing service to 1.8 crore farmers with trading volume of rupees 3 lakh crore. जो ENAM schemes थी, जिसको हम Electronic Agriculture Market कहते हैं, it was launched by PM मोदी इन द ईयर 2016. 2016 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी टू इंटीग्रेट द व्हाट वी कॉल जिनको हम APMC मंडीज कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज. जो टोटल नंबर है APMC मंडीज का इंडिया में, इट इज़ नियरली 7500, अराउंड 7500 के आसपास APMC मंडीज है, होलसेल मंडीज है. अब इन मंडीज को इंटीग्रेट किया जा रहा है थ्रू ENAM, सो दैट गवर्नमेंट को एक ही प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन आप सिर्फ आपके फिंगर्स पे, जैसे ENAM की वेबसाइट पे जाओगे, यू कम अक्रॉस कि जो सूरत की जो मार्केट है, जो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी है, या इंडिया में कहीं भी डिफरेंट मंडीज हैं, वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उनके क्या प्राइस चल रहे हैं, कितनी क्वांटिटी वहाँ पे अवेलेबल है, डिमांड एंड सप्लाई का पता चल जाता है. सो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड पोर्टल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सो अभी तक जैसे मैंने कहा कि 1361 मंडीज दे हैव बीन, वहाँ पे हो गया, बाकियों में भी काम चल रहा है. सो सोशल जस्टिस हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें 4 कास्ट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस था. अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर अमृतकाल. डियर फ्रेंड्स, अमृतकाल बेसिकली क्या है? अमृतकाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे फॉर एग्जांपल वी गॉट इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1947 एंड इन द ईयर 2047 हम लोग अपना 100 ईयर्स सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस का, राइट? अमृतकाल का जो टाइम है
इट स्टार्ट्स विद 2022, मीन्स जब 75th ईयर्स में हम एंटर करते हैं, तो 75th ईयर ऑनवर्ड जो टाइम पीरियड है 22-23 का जो टाइम पीरियड है उसको हम अमृतकाल कहते हैं। सो जो लास्ट के 25 साल है, जब मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि वी वुड बी ए विकसित भारत बाय 2047, उसको अमृतकाल कहा गया है। सो कीपिंग इन माइंड द डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, focus is on 6 things: sustainable development, infrastructure development, health, housing, tourism, and agriculture and food processing. So let us discuss them one by one. अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, सो देयर इज कमिटमेंट बाय द गवर्नमेंट टू मीट नेट जीरो बाय 2070। नेट जीरो का मतलब है कि जो ग्रीन हाउस एमिशंस हम कर रहे हैं और ग्रीन हाउस रिमूवल, जो एक तो एमिशंस हो गए और ग्रीन हाउस रिमूवल में जो एफर्ट्स चल रहे हैं, दे गेट बैलेंस्ड। तो देयर इज नो नेट ग्रीन हाउस एमिशन, राइट। सो वायबिलिटी गैप फंडिंग बाय फॉर विंड एनर्जी को प्रमोट करने की बात है। सेटिंग अप ऑफ कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी, कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन कैपेसिटी की बात है। फेज्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ सीएनजी, पीएनजी एंड कंप्रेस्ड बायोगैस। सो जो नेचुरल गैसेस हैं उनके ऊपर भी काफ़ी फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी, इसके लिए फंड्स की बात की गई है। Then rooftop solarization, because solar energy is one area which is going to be a game changer in the coming years. 1 crore households, 1 crore घर will be enabled to obtain up to 300 units of free electricity per month, right? So 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी इससे, रूफटॉप सोलराइजेशन से। ई बसेज एंड ई व्हीकल इकोसिस्टम, ये तो हमें पता ही है, इंडिया में अभी शुरू हो गया है ई बसेस का और ई व्हीकल्स का। न्यू स्कीम ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री टू बी लॉन्च टू सपोर्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। तो ये गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं। अगर हम देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो बजट में जिसके बारे में मेंशन्ड है, 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस रिलीज्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना। 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस की बात की गई है। 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब, 72.2 लाख एलईडी ट्यूब लाइट्स एंड 23.6 लाख एनर्जी एफिशिएंट फैंस डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर उजाला एंड 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल अंडर एसएनएलपी। तो ये डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो चल रही हैं या जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आगे प्रपोज बजट में मेंशन किया है। What are achieved and what are the achievements and goals for infrastructure development as per budget 2024-25? Implementation of 3 major railway corridor programs. ये रेलवे कॉरिडोर्स की इंप्लीमेंटेशन की बात है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ लॉजिस्टिक्स अक्रॉस द कंट्री। प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात भी करें, देन यू कैन सी 2015-16 में इंडिया रिसीव्ड $298 billion of foreign direct investment. It increased to 596, so almost some $600 billion के आसपास है FDI इनफ्लोज में। इनफैक्ट इंडिया इस वक्त दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में है जहां पे सबसे ज्यादा FDI आ रही है। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ न्यू एयरपोर्ट्स अंडर उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम। एंड प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन बाय मेट्रो रेल नमो भारत। नमो भारत स्कीम भी अभी 1-2 साल पहले शुरू की गई थी गवर्नमेंट इंडिया की, राइट। अगर हम, ये एक बड़ा ही पॉजिटिव सिनेरियो है। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें, सो यू कैन सी कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज अराउंड 1.5%। अगर हम इस चीज को ऐसे ले आए, 1.5% in financial year 2018. It has gone up to around 3.4% by 2024-25. So there is in fact increase. It has more than doubled. In fact, जो capital expenditure है government of India का, it has more than doubled, which is very good sign because increase in capital expenditure is an indicator of capital development of the country. So ये एक बड़ा ही positive sign है जिसके ऊपर हमें focus करना है, right?
देन व्हाट आर द प्रपोजल्स फॉर हेल्थ, हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट का क्या फोकस है? इनकरेज सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स 9 to 14 ईयर्स, 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए सर्विकल जो कैंसर वैक्सीनेशन है उसकी बात है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2, ये स्कीम टू बी एक्सपीडाइटेड फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन डिलीवरी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, ताकि न्यूट्रिशन की दिक्कत ना आए। देन यूविन प्लेटफॉर्म फॉर इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ मिशन इंद्रधनुष टू बी रोल्ड आउट, ये यूविन प्लेटफॉर्म की बात चल रही है। एंड फोर्थ इज हेल्थ कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। तो ये डिफरेंट स्कीम्स हैं जो प्रपोज्ड हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इन द कंट्री। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर प्रपोजल्स फॉर हाउसिंग। हाउसिंग के लिए क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण एरियाज में है, इट इज क्लोज टू अचीविंग टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेज, 3 करोड़ हाउसेज का टारगेट ये अचीव करने वाली है। और एडिशनल टारगेट 2 करोड़, एडिशनल 2 करोड़ टारगेटेड फॉर नेक्स्ट, इस बजट में अगले 5 सालों के लिए 2 करोड़ और हाउसेज का टारगेट रखा गया है। हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम टू बी लॉन्च्ड, ये बजट में बात की है कि नई स्कीम लॉन्च की जाएगी टू प्रमोट मिडिल क्लास टू बाय ऑब्लिक बिल्ट देयर ओन हाउसेस। तो हाउसिंग के बारे में बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है यहाँ पे। और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में 23 पिछले साल के बजट में 79,590 करोड़ का एलोकेशन था, इस बार इसको मार्जिनली इंक्रीज किया गया है 80,671 करोड़, राइट। टूरिज्म की बात करें, states will be encouraged to undertake development of iconic tourist centers to attract business and promote opportunities for local entrepreneurship। ये important है क्योंकि इंडिया में टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, चाहे वो नेचुरल टूरिज्म हो, चाहे मेडिकल टूरिज्म हो, चाहे स्पिरिचुअल टूरिज्म हो। अभी अयोध्या के केस में हमने देखा कि कितना लोगों के मन में क्रेज़ है। सो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, ऐसे डिफरेंट तरह के टूरिज्म है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर सकती है। तो स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा कि वैसे कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स, आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स उनको आइडेंटिफाई करें और वहां पे उनकी डेवलपमेंट की जाएगी। एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू प्रोवाइड टू स्टेट्स टू इनकरेज डेवलपमेंट। नाउ दिस इज, पहले तो आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स इनको ढूंढना है, फिर गवर्नमेंट कह रही है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू इनकरेज सच आइकॉनिक टूरिस्ट पॉइंट्स। अभी G20 मीटिंग जो इंडिया में हुई, G20 मीटिंग्स इन 60 प्लेसेस प्रेजेंटेड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टू ग्लोबल ऑडियंस। ये डाइवर्सिटी हमने ग्लोबल ऑडियंस को दी। एंड प्रोजेक्ट्स फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अमेनिटीज विल बी टेकन अप इन आइलैंड्स इंक्लूडिंग लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात, अभी लक्षद्वीप न्यूज़ में था, आप सबको मालूम है, फॉर मालदीव एंड अदर थिंग्स। तो अभी आइलैंड्स को प्रमोट करने की बात की गई है। वेल, व्हाट आर द प्रपोजल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग में क्या है? गवर्नमेंट विल प्रमोट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज। पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज में स्टोरेज आ गया, देन मार्केटिंग इज देयर, देन ट्रांसपोर्टेशन इज देयर। तो ये सारी की सारी चीजें हैं पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी। तो गवर्नमेंट प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे प्रमोट करने जा रही है। एलोकेशन ऑफ नैनो डैप टू बी एक्सपेंडेड इन ऑल एग्रो क्लाइमेट जोन्स। तो जो अमोनियम फास्फेट, जो बेसिकली जो फर्टिलाइजर है, उसकी डेवलपमेंट की बात है डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन्स में, उसकी एक्सपेंशन करना। देन आत्मनिर्भर भारत ऑयल सीड अभियान स्ट्रेटजी टू बी फॉर्मुलेटेड टू अचीव आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल सीड। इंडिया जो है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल इन द वर्ल्ड, राइट। रीजन ये है कि इंडिया में अभी ऑयल सीड्स में कोई HYV सीड्स, ऐसी कोई ब्रेक थ्रू नहीं आई है कि हम आत्मनिर्भर हो सकें, हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, हम सेल्फ रिलायंट हो सकें। वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर इंपोर्ट। इसके लिए स्कीम इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान। देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू बी स्टेप्ड अप टू एनहांस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी, डबल एक्सपोर्ट्स एंड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और इसी मत्स्य संपदा योजना के अंडर 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स टू बी सेटअप। ये एक्वा पार्क्स की बात चल रही है जो इंटीग्रेटेड रहेंगे। इनफैक्ट इंडिया का जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क है, इट वाज स्टार्टेड इन अरुणाचल प्रदेश, राइट।
एलोकेशन अंडर ब्लू रेवोल्यूशन, तो हम देखें इसकी बात करें, फिशरी की बात करें, ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके अंडर जो एलोकेशन 23-24 में 2025 करोड़ की थी, इट हैज बीन इनहैंस्ड टू 2352 करोड़. सो इट मींस ब्लू दिस फिशरी और मत्स्य पालन, it is in the priority list of the government, right? So coming to the third part, that is taxes. पहले हम direct taxes की बात कर लें. डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, इन सब को हम डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं. नो चेंज इन टैक्स रेट फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि ये इंटरिम बजट है, प्रोबेबली गवर्नमेंट नए बजट में कुछ सोचेगी. डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ट्रिपल, रिटर्न फाइलर्स इंक्रीज टू 2.4 टाइम्स इन द लास्ट 10 ईयर्स. ये गवर्नमेंट अपनी अचीवमेंट बता रही है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्टर्स की नंबर बढ़ गया है, कलेक्शन का नंबर बढ़ा है. टैक्स बेनिफिट्स टू स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट मेड बाय सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2025. नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक ये टैक्स बेनिफिट्स इनको दिए गए हैं स्टार्टअप्स को. Then tax exemption to certain income of IFSC units extended by a year to 31st March 2025. Next year 31st March तक IFSC companies को भी ये tax benefits दिए गए. Indirect tax proposals. Indirect taxes के लिए सरकार ने क्या बोला है? नो चेंज इन टैक्स रेट फॉर इंडायरेक्ट टैक्स. इंडायरेक्ट टैक्सेस में भी कोई चेंज नहीं है, वेदर इट इज जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी, इसमें कोई चेंज नहीं है. और कस्टम्स में भी कोई चेंज नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटीज में भी कोई चेंज नहीं है. जीएसटी यूनिफाइड द हाईली फ्रेगमेंटेड इंडायरेक्ट टैक्स रेजिम इन द कंट्री. जीएसटी के बेनिफिट्स सरकार ने कुछ गिनाए हैं बजट में. फर्स्ट इज एवरेज मंथली ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन डबल टू 1.66 लाख करोड़ दिस ईयर. तो मंथली जीएसटी कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ की है सरकार की. जीएसटी टैक्स बेस हैज डबल्ड, इट मींस नंबर ऑफ पीपल हु आर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स, दे हैव डबल्ड. स्टेट जीएसटी रेवेन्यू बायंसी इंक्रीज टू 1.22 इन पोस्ट जीएसटी पीरियड टू 17-18 फ्रॉम 0.72 इन प्री जीएसटी पीरियड. स्टेट की जो रेवेन्यू बायंसी है वो बड़ी है, मींस स्टेट का जो इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स है वो इंक्रीज हुआ है. 94% of industry leaders view transition to GST as largely positive. GST led to supply chain optimization. GST reduced the compliance burden on trade and industry, and lower logistic costs and taxes helped reduce prices of goods and services, benefiting the consumers. So ये बजट 2024-25 का एनालिसिस था. आई होप यू लाइक द डिस्कशन. आपके कुछ भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, वो आप कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.